Hello, and you're watching Claptrap. We are back again. It's a very important video for all of us, those who are interested in architecture and also interior design. As we understand, architecture and interior design exist to create the physical environment in which people live. But that's not all about it. It's not just about the built environment. It is also a part of our culture. It stands as a representation of how we see ourselves as well as how we see the world. Today we are in Odisha and we will try to understand nuances of commercial space and the way technology is incorporated without distorting the aesthetics of interior. We are going to introduce you to two amazingly dexterous people. Start with the introduction part, then we'll explore the property. Hello, Rajat ji. Hello Bhakti ji. Hi. Welcome to Claptrap. Thank you. The name of our company is Artifice Design Studio. Okay. So basically we have two companies, Artifice Design Studio and Artifice Infra and Interior. So both have their Artifice Design Studio is basically dealing in the designing part, and Artifice Infra and Interior is taking care of the construction part. Okay. Perfectly suitable. Usually there are three approaches to a project. Okay. One is design only. The other is construction only, which we call as a turnkey. Right. And the third one is design plus construction, which is usually called as design build. Okay. No, we actually deal in all the three spheres. Right. No, but there are some projects where people need only designs, right? Yeah, that We take care of that yeah, as well. that is our basic expertise. Okay. So basically, we are designers, All right. and eventually we got into turnkey because the kind of designs we were doing, the contractors were not able to execute those designs to the detail that we were requiring. So eventually, it was a what you say, turn of an event or Okay. God's wish that we entered into this. So it was to say a requirement of time, if we say. We eventually got into this, and then we understood that it's better that if we execute. All right. Because it's a transparency issue, because we deal in a transparent manner, so it's convenient for the client or what budget we are giving, so we can stick to the budget, we can stick to the timeline. So these are advantages which is on our end if we are dealing with the execution. Otherwise, if they are directly dealing with the contractors, then it gets a bit complicated. Okay. This is one. Second is we have 4 states presence. We are not limited to Odisha only. We have offices like in 4 states, I guess. Okay. So how do we operate and what all services we have in these 4 states and what are those states? In this 4 state, what we provide, we are presently operational in Odisha, Okay. Bihar, Jharkhand, and Andhra Pradesh. So what we are trying to do is in this area we are doing both design and build. But in other states we can offer design services only. If there is a certain amount of budget and all, we can go and execute the same also. All right, done. And you have done multiple projects. You have executed to the best of my knowledge, I guess more than 100 projects you guys have. But both of you together have done, right? Yeah. Okay, right. From turnkey to interior as well. Yeah. Both commercial and residential apartments. Turnkey projects, we have executed more than 100 projects. Okay. As far as designing is concerned, we have designed more than 300 projects. Wow. The project which we are going to see today is for a company called E Square Technologies Private Limited. So this is basically a 4,000 square feet office located in OCAT Tower, Achar Vihar, Bhubaneswar. Okay. Odisha. What was the size of the space? How much was the space? The carpet was roughly around 4,000 to 4,500 square feet. All right. It's being an IT company. I mean, I'm sure you must have carried out a theme as well. So was there something specific that you had in your mind in terms of technology? Because they must be very futuristic, right, in terms of thinking. So does it reflect in the interior work? Yeah, it do reflect in the interior. We have played with a lot of. First, I'll talk about the aesthetic part. In the design, you'll see a lot of it is not like a typical office space. Okay. It is completely a retro theme, and you will see open ceiling, metal mesh ceiling, and you will see a lot of. We have played with colors and all, and it's quite bright and very catchy. If you go there, you feel a lot of welcoming and all. But in the same time, we have added a lot of technology into that. Okay. And that is a real surprise when you go to visit the site. We'll be showing you all the products and all the All things right. we are installing. Sure. So finally, we have reached to this space. Now let's start exploring, right? Okay, Rajat. So बताइए यहाँ से start करते हैं हम अपना Yeah, सफर. hi Sanjeev, welcome to our space.
ये हमारा ई स्क्वायर की साइट है और ये अभी साइट के बाहर का जो अपना जोन आता है, ये एक ब्रेकआउट जोन बनाया है हमने। ओके। दिस वाज अ डेड एंड कॉरिडोर। एज यू कैन सी कि ये कॉरिडोर के लास्ट में हमारी ये ग्लास वॉल आ जाती है। सो इस वॉल को भी हमारा जो बाहर वाला स्पेस था उसको हमने इस तरह से यूटिलाइज कर लिया है कि वो भी क्लाइंट के हमारे फुल यूटिलाइजेशन में आ जाए। Okay. और बाहर से ही जैसे आप देखेंगे कि ये ग्रीनरी की फील आ जाने से लोगों को ऑलरेडी एक कामनेस की और एक हैप्पीनेस की फीलिंग आ जाती है। ये एंट्रेंस से आप कहेंगे कि एक रिसेप्शन के एक पहले वाला एरिया है, Okay. क्योंकि इसमें बहुत सारे इनफॉर्मल एरिया हमने एरिया को डेवलप किया हुआ है। Right. Informal sit out area. Here we have sitting for 4 people. So this is also acoustic treatment has been done in this area. You see the carpet has been laid over here. The wall that we are seeing over there, this has been cladded with calcium silicate board. Okay. The grooves that you are seeing, that these are 12 mm calcium silicate board. Okay. और उस बोर्ड से फिर वो ग्रूव्स बनाए हुए हैं जिसके ऊपर फिर टेक्सचर पेंट किया हुआ है। फिर जो आप पेंटिंग देख रहे हैं और जो उसके ऊपर फिर ट्रैक लाइट लगी हुई है जो उस पेंटिंग को हाईलाइट कर रही है। ओके। तो जब हम लोग एंटर कर रहे हैं तो इट क्रिएट्स अ गुड नाइस बैकड्रॉप और वो एक अच्छा सिट आउट जोन भी हो जा रहा है। और साइड में वहाँ पे एक प्लांटर डाला हुआ है जो एक ग्रीनरी वाली जो फील हमारी बाहर थी उस थीम को भी कैरी ऑन कर रहा है। जो आप पूरे ऑफिस में भी हमारे देखेंगे कि वो प्लांटेशंस को हमने पूरी इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। ठीक है। फर्नीचर प्लेसमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, सो वी वेरी डिसाइसिवली वी प्लेस लाइक two sofas for two people seating arrangement, and there's a center table. Yeah. Right. Okay. Because there's already a provision given outside. Yeah. Right? Okay. And there is another very interesting feature we have over there. We have this telephone booth. Okay. So to say it's a telephone booth, लेकिन इसका dual purpose है। एक ये बहुत अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट की तरह एक्ट कर रहा है और दूसरा ऑफिस में क्या बहुत टाइम इनको कैसी प्रॉब्लम हो रही थी कि किसी एम्प्लॉय को कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करनी है किसी क्लाइंट से तो उसको फिर बाहर निकल के जाना होता था। अभी दिस बूथ एज यू कैन सी दिस हैज बीन मेड एज अ साउंड प्रूफ। This is the main reception area where we have a nice seating over here. And if you see the entire area, this right wall is actually inclined a bit. It is actually purposefully done so that we get a wider view of the entire area inside in the workstation area. And जब हम लोग को वो अप्रोच किए थे तो he wanted a very energetic and new retro kind of environment to the new space which he tried to create as a head office of his in Bhubaneswar. Okay. So this is biometric system. Employees are supposed to come here and they have to like it will detect. All right. Okay. It will detect their face and all. Yeah. Okay. What about the cable and other things related to this? They're just behind it. Yeah, they have been concealed inside the partition. Okay. We have a 4-inch partition in this. Going that throughout. Everything has been concealed inside. Okay. Yeah. So. Yeah, please tell me. So there is a very interesting part in this office. Okay. So this, as you can see, this is a glass wall partition which is segregating this reception area with rest of the office. Right. So as you know, the reception area is for the outside people and the workstation and the other areas for the inside people. Yeah. Right. So right now you can have you don't have a kind of a visual barrier. You just have a physical barrier and you can see through the office. Right. It's translucent. Yeah. It's very transparent kind of a thing. Right. But on the click of a button, this transparent display will convert into a opaque display. Okay. Oops. This kind of a thing. Completely opaque kind of a thing. It's kind of a layer of fog. Right? Yeah, it's a kind of a layer of fog. So this is a very this is a very advanced technology. This is a liquid crystal display. Liquid disperse. Polymer dispersed liquid crystal. This is a very advanced technology with the name of polymer dispersed liquid crystals. Okay. So what happens? Electricity is passed. You see, there are this electric strips are over there. All right. So once electricity is passed through this, the crystals which are into this, there is a film over there. On the glass. On the glass. Okay. From the inside, there is a film coating. So that film coating turns from transparent to opaque. All right. So this initially when it was just a physical barrier, now it also acts as a visual barrier. Now, All right. Inside.
Okay. It's very quick fog. All right. So tell me, how does it work? This has become like a complete board. Yeah. So once you turn into this opaque kind of a screen, so as you can see, we have this short distance projector that we were talking about. Okay. So this is the jali ceiling that we have. So this jali ceiling will be removed, All and this projector will come down. Okay. And from this short distance only, this projector will make a projection on this 12 feet by 88 foot wall. Okay. Suppose somebody is sitting in the reception, some guest is waiting in the reception, and some video of this company is being played on this screen only. Then All he right. can have a bigger picture, and then he can go through all the videos. Okay. So that is a part from the guest side. The same thing can be projected from inside also. So if this thing is being projected from this side, then this entire workstation, if you have a central kind, if somebody wants to address a big crowd, so in this hall, if say 50, 60, 100 people are there and somebody wants to address them, then this entire thing will convert into a kind of a conference hall, and this will act as a screen, and the same presentation can be given over here. All right. This basically is the MD room. If you can see, it has a very what we say very cozy and clean look in this, and you see the backdrop has been created in such a way that a lot of achievements, artifacts has been integrated properly inside. So it acts as a feature wall for the MD, and all these artifacts has also been handpicked by us, like with Euro to thick. And if you see this matching baffle we have created in the ceiling, but that we have done it manually, cast in situ in the site. Oh, okay. And this has been done with SDHMR and your laminates. Okay. This is customized. Yeah, that's been customized. ठीक है. Quick छोटी छोटी चीजें और हैं यहाँ पे. Same lacquer कलर का, blue कलर का lacquer glass का To हमने keep a board दिया है. continuity, what we have done to keep a continuity from the reception, if you see the entire color palette has been interlinked with spaces. Okay. So to continue that same color which we had focal point of in the reception, that we have continued to the MD room also. All right. Visitors, yeah. Right. ठीक है, done. And talking about the louvers, we continue same. The same wall is being featured, and on the left hand side we have used Satvario finish. Yeah, this right? is a Satvario finish tile. It's basically a 10 feet tile which we have like. Oh, this is tile. Yeah, Okay. that's the tile. Okay. Actually, what we have done in order to keep privacy and also to not allow any sound leaking from this space, Okay. we have concealed the ceiling. If you see, the baffle has been concealed in the top, but in the outer side, what we have done, those are open, like open Okay. ceiling baffles. All right. So This area is basically a secretary room. If you see, this is just next to the MD1. There are two MD rooms in this area. Okay. One is MD1 and MD2, and the secretary room is placed in such a area that anybody entering from the reception get a direct access to her, and also it is visible so that people can come and take appointment or anything okay. in this zone. All right. Played with a color palette of gray, black, and if you see a bit of teak finishes there. Okay. So. It looks very nice and elegant. Little bit of commercial touch given to it. Because the user, like the director, is of around, I guess, 26 or 27 age. Okay. So he wanted a bit of gray tone, black tone, and thing. He is quite young, so he wanted something in gray, black, white, and all. So we tried to create the room in such a way. कि हमारी सिटिंग कैपेसिटी है दैट इज़ 36. ठीक है. ठीक है. जो अभी ये तो ऐसा ओपन सिस्टम में सारा डिज़ाइन किया हुआ है, जो एक मेन ग्रिड हमारे इधर फ्रंट लाइन में आता है और बाकी इधर राइट साइड वाला जो है इस तरफ में हमारा थोड़ा सा सिटिंग कैपेसिटी इस तरफ में आती है. राइट साइड में. हाँ, इधर राइट साइड वाला जो एरिया है इसमें हमारी बाकी थोड़ी सिटिंग कैपेसिटी इस तरफ से आती है. राइट. ये जैसा ऑफिस है जो हम लोग कॉर्पोरेट ऑफिस डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें जो बहुत बड़ा चैलेंज कहेंगे या जो बहुत बड़ा बेसिक पैरामीटर जो अपने को सबसे पहले कंसिडर करना होता है वो सर्विसेज पार्ट होते हैं. अच्छा. तो सर्विसेज पार्ट में हमारी जो जो चीज़ें आती हैं वो सबसे पहले है कि इलेक्ट्रिकल का जो कनेक्शंस होते हैं. दूसरा जो HVAC है, HVAC मतलब हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, जो नॉर्मली AC जो नॉर्मल टर्म्स में जिसको बोलते हैं. जी. तीसरा जो इंटरनेट की सर्विसेज आती हैं. चौथा जो हमारी जो फायर फाइटिंग की जितनी सर्विसेज आती हैं, फायर फाइटिंग में अगेन जो वाटर बेस्ड फायर फाइटिंग सिस्टम है, गैस बेस्ड फायर फाइटिंग सिस्टम है, वो सारा सिस्टम उसके अंदर आता है. पांचवा जो आता है वो हमारा CCTV कैमरा का जो सारा सिस्टम आता है, और जो छठा है वो हमारा जो सारा साउंड सिस्टम आता है.
ठीक है। तो ये 6-7 बाकी और प्लस उसके अलावा जो एक्सेस कंट्रोल है वो अलग एक सिस्टम है। तो ये 6-7 ऐसे सिस्टम है कि जो अपने को काम शुरू होने से पहले डिज़ाइन के डे 1 में सोच के चलना होता है, उसको इंटीग्रेट कर लेना होता है। ग्रिड सीलिंग इसलिए की हुई होती है क्योंकि उसमें सर्विसेज बहुत ज़्यादा गए हुए होते हैं, तो उन सर्विसेज के मेंटेनेंस के लिए ग्रिड में 2 फीट बाय 2 फीट की ग्रिड होती है, जिसको आप कभी भी हटा के उन सर्विसेज का मेंटेनेंस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी इस स्पेस को भी अगर आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पे भी आप अगर सीलिंग देखेंगे तो हमने ग्रिड सीलिंग नहीं की है, लेकिन हमने सीलिंग में भी अलग अलग सीलिंग टाइप के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। अभी जैसे ये वाली हमारी एक ओपन जाली सीलिंग के हिसाब से इसको किया हुआ है। ऑन दिस साइड अगर हम लोग देखते हैं तो ये वाली हमारी बैफल सीलिंग की हुई है जी। तो इसके ऊपर पूरे में ही अगर आप देखेंगे तो पूरे में ही सारे सर्विसेज जो हैं वो ओपन है। तो ये सारे सर्विसेज करके इस पूरे सामान को एक पीयू में एक ब्लैक फिनिश में एक स्प्रे पेंट कर दिया गया है। उसके बाद में फिर सारा प्रोसेस उसके साथ में शुरू हुआ है। ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो जब हम लोग कोई वर्क स्टेशन देखते हैं तो इस पे नॉर्मली 3000 लक्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग के लिए। अच्छा। जो आपको रेसिडेंशियल में इतनी ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अनटिल अनलेस आपका कोई स्टडी टेबल नहीं है। अदरवाइज जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट अपने को इस वर्क स्टेशन पे चाहिए वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपको ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल पे नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो वो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर इन द माइंड कि लाइट हम लोग रैंडमली नहीं डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा। अगर अभी आप जैसे अगर इस वर्क स्टेशन को देखेंगे तो इस वर्क स्टेशन में आप देखिए कि 3 रेक्टेंगुलर लाइट लगी हुई है और बीच में भी 2 सर्कुलर लाइट्स लगी हुई हैं। राइट। ये तो क्या लॉजिक है इसमें? ये रेक्टेंगुलर और सर्कुलर तो जस्ट एस्थेटिक पर्पस से है। अच्छा। लेकिन दोनों की अगर आप इंटेंसिटी देखेंगे तो इस टेबल पे आप रेक्टेंगुलर लाइट की टेबल के नीचे इंटेंसिटी देखिए और सर्कुलर लाइट की टेबल के नीचे इंटेंसिटी देखिए, दोनों इंटेंसिटी आपको सेम आएगी। ठीक है। अगर टेबल के हिसाब से ही हम लोग देखते हैं तो ये अभी जैसे ये एक हमारा नॉर्मल वर्क स्टेशन की टेबल है जो जिसका एक बेसिक फ्रेमवर्क जो है कि ये अगर हम लोग इसका बेस देखते हैं, ये जो बेस है ये हमारा एमएस का बना हुआ है जिसपे हमारा पाउडर कोटिंग की हुई है और जो इसका टॉप है इस पे लैमिनेट लगी हुई है और इसके साइड पे जो है ये एज बेंडिंग की हुई है। राइट। ठीक है। और इसके जो पार्टीशंस हैं, ये पार्टीशंस भी नॉर्मली कैसा होता है कि बहुत टाइम ये सॉफ्ट बोर्ड होते हैं, बट सॉफ्ट बोर्ड में फिर वो पिन करते करते वो बहुत टाइम कैसा होता है कि वो वियर एंड टियर हो जाता है तो उतना अच्छा नहीं दिखता। तो ये क्लास दिखता है। इस पे अगेन यू कैन हैव स्टिकी नोट्स जब आपको कुछ लिखना है या चिपकाना है, प्लस इस पे आप डायरेक्टली कुछ लिख सकते हैं फिर उसको मिटा सकते हैं उस हिसाब से। रजत जी, बोर्ड का एक और प्रॉब्लम भी होता है कि वो मॉइस्चर कैच करता है स्लोली, फिर वो स्मेल भी गंदा करता है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो फाउल स्मेल क्रिएट करने में भी रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ग्लास इज इजी टू मेंटेन, दे लुक मोर क्लासी, द लॉन्ग लास्टिंग भी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। ओके। इसका हाइट का डिसीजन कैसे लिया जाता है, किसके बेसिस पे कि हम क्या पैरामीटर्स हैं इसके? इसमें कैसा होता है कि जो वर्किंग टेबल की जो स्टैंडर्ड हाइट है दैट इज 750 mm। ओके। 750 mm इज क्लोज टू 2.5 फीट, नॉट एग्जैक्टली 2.5 फीट, लेकिन mm में हम लोग हमेशा हाइट कंसिडर करते हैं। तो ये 750 mm की जो स्टैंडर्ड वर्किंग हाइट कंसिडर की जाती है। जो ये पार्टीशन हाइट है, पार्टीशन हाइट किस हिसाब से कंसिडर की जाती है कि जब कोई वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है तो उसको दूसरे से आई कांटेक्ट होना है या नहीं होना है। ये आपको एक ये कस्टमाइज होता है। हर ऑफिस का हर ऑफिस का अलग अलग कल्चर होता है। तो इसमें था कि अपने को वो आई कांटेक्ट हम लोग रख सकते हैं, तो इस हिसाब से इस पार्टीशन को बहुत ऊंचा नहीं किया हुआ है, नहीं तो ये पार्टीशन और भी 6 इंच ऊंचा हो सकता था। इसको ऊंचा करने से एक नुकसान ये भी होता है कि आपका स्पेस स्केल होता है, आपको ऑफिस थोड़ा छोटा दिखता है। बिल्कुल। इसलिए आपने इसको एक्स्ट्रा ज्यादा ऊपर नहीं किया है ना? ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आप बता रहे थे कि आपने बहुत अच्छा एक प्रोविजन दिया है इंटरनेट सर्विस का। हाँ। हर एक में यहाँ पे ये देखिए ये पॉपअप बॉक्स है। दिस इज टेक्निकल टर्म में इसको हम लोग पॉपअप बॉक्स बोलते हैं। ठीक है। इसमें कैसा होता है कि जैसे इसमें ये 2 आपको जो ये दिख रहे हैं, इसमें हर टेबल पे एक डेटा और एक वॉइस का पॉइंट होता है जी। डेटा मीन्स इंटरनेट का जो पॉइंट है और वॉइस मीन्स जो टेलीफोन के जो हम लोग पॉइंट्स के लिए ये बोलते हैं। करेक्ट है। तो अभी नॉर्मली कैसा है कि इस ऑफिस में 44 टेबल्स पे डायरेक्ट हमारा इंटरनेट का कनेक्शन है, इथरनेट का। तो नॉर्मली कैसा है कि एक बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि हम लोग वाईफाई तो इतनी अच्छी आती है आजकल, जियो आ गया है, सब कुछ आ गया है, तो व्हाई वी आर गोइंग फॉर दिस केबल काइंड ऑफ अ थिंग। तो ऑफिसेज में कभी भी अगर आप देखेंगे तो ऑफिस में हमेशा ही इथरनेट बेस्ड केबल या नॉर्मली वायर बेस्ड केबल जो हम लोग नॉर्मल टर्म्स में समझते हैं वैसा दिया जाता है। उसके 2-3 रीजंस होते हैं। एक तो कैसा है कि अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आपको एक अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो एक आपको सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे अपनी सामान दे रहा है। ओके।
उसको आप अगर 44 या 50 अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर रहे हैं जी, तो वो आपका जो सर्विसेज है वो डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी। वो उसकी स्पीड पे फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा। हाँ, दूसरा कैसा है कि जब आप डेटा जो हमारा केबल से प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप वहीं से अपना डेटा ट्रांसफ़र भी अगर बड़ी फाइल्स करनी है तो उसको भी पैरेलली कर सकते हैं जी। तीसरा कैसा है कि जो रेगुलेटरी प्रोविजंस भी कहते हैं, सिंस ये ऑफिस बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में उसमें भी डील करता है, तो वाईफाई का जो नेटवर्क होता है वो उतना सिक्योर्ड नहीं होता है कि जितना आपका कोई एक वायर बेस्ड नेटवर्क सिक्योर्ड हो सकता है। ठीक है। ये हमारा एक प्रॉपर डेटा रैक है जी। ठीक है, ऐसे 2 डेटा रैक हैं हमारे पास। डेटा रैक बेसिकली क्या होता है कि जो आपके इंटरनेट आते हैं या जो अपना टेलीफोन की लाइंस आती हैं उनको जब एक जगह से मल्टीपल पॉइंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो आप समझिए कि एक ऐसा मेन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आप उसको समझिए, एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जहाँ से एक मेन लाइन आई और उसकी सेम कैपेसिटी को रखते हुए आप उसको जितने मल्टीपल लाइंस में चाहें तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्लस एक इसमें एडेड सिक्योरिटी प्रोविजंस भी होते हैं, अपना इसका कूलिंग यूनिट होता है, वो सारी चीज़ें इसके साथ में आती हैं। ऑलराइट। रजत जी, एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी कि जनरली इन केस ऑफ फायर यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, स्मोक डिटेक्टर्स भी लगे हुए हैं, लाइकवाइज बाकी वो वाटर डिस्पर्शन होता है, पानी निकलता है उसमें से पाइप्स में से, लेकिन जहाँ पे इस तरह के रैक्स होते हैं क्योंकि ये तो आई गेस वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, तो क्या इसका जो कार्कस है पूरा इसका बॉक्स है वो वाटर रेजिस्टेंट है कि इन केस ऑफ फायर अगर इसमें पानी जाएगा तो ये कैसे उसका सेफ्टी करते हैं? उसमें कैसे जो हम लोग फायर सप्रेशन सिस्टम होता है, फायर सप्रेशन सिस्टम बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक वाटर बेस्ड फायर सप्रेशन सिस्टम होता है और एक गैस बेस्ड फायर सप्रेशन सिस्टम होता है। वाटर बेस्ड फायर सप्रेशन सिस्टम नॉर्मली हमने सब जगह पे देखा होता है, जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ऊपर में जो ये हमारी फायर की लाइंस लगी हुई हैं, तो इसमें बाहर में पंप लगे हुए होते हैं, यहाँ पे फायर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लगी हुई होती है, उसमें स्प्रिंकलर लगे हुए होते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सिस्टम होता है कि उसमें स्मोक डिटेक्ट हुआ, उसमें फायर हो गया और वो सारा डिस्पर्स हो गया। लेकिन ऐसे केसेस में क्या है कि ये आप जैसे देख रहे हैं, ये सपोज दिस रैक इज़ वेरी कॉस्टली। अब अगर इस पे पानी पड़ता है तो बहुत टाइम कैसा होता है कि कोई अगर फॉल्स अलार्म ट्रिगर हो गया है और उसकी वजह से पानी आ गई है तो ये फ़ायदा होने के ज़्यादा इससे उल्टा नुकसान हो जाएगा। करेक्ट। तो इस केस में फिर कैसा है कि वाटर सप्रेशन सिस्टम जो है वो हमारा काम नहीं आता। इस केस में हमारा गैस बेस्ड सप्रेशन सिस्टम काम में आता है। अच्छा। गैस बेस्ड सप्रेशन सिस्टम में कैसा होता है, उसमें अगर एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग उसको एक्सप्लेन करें तो नॉर्मल फायर हाइड्रेंट लाइन में जैसे पानी भरा हुआ होता है, उसी तरह गैस सप्रेशन सिस्टम में सेम लाइन अगर होगी तो उसमें गैस भरा हुआ रहता है। जैसे आप नॉर्मल गैस जो फायर एक्सटिंग्विशर्स देखते हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, बेसिकली ये गैस भरी हुई होती है, उसको आप किसी चीज़ पे स्मोक करते हो तो वो उस चीज़ को बुझा देता है, आग को बुझा देता है। तो इसमें भी वैसा ही होता है कि एक सिलेंडर एक जगह पे रखा हुआ एक जगह पे स्टेशन होता है और वहाँ से छोटे छोटे पाइप जो हैं वो इसके अंदर आए हुए होते हैं। ओके। सो इसमें देयर इज नो वे पानी जाने का कोई जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये जो सील है, एक तो आप देखेंगे कि ये वैसे भी यहाँ से डोर लॉक है, ऐसे जनरली भी कोई इसको नहीं खोल सकता है क्योंकि ये एक्सेस कंट्रोल्ड है, और प्लस है कि जैसे ये वाटर सील्ड भी है, अगर ऊपर से पानी पड़ेगा तो इसमें कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। क्योंकि इसका खुद का एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है अंदर। मेरा अगला सवाल वही था कि अगर इतना सील है ये, मतलब इतना टाइट पैक्ड है, तो इसके अंदर जो हीट जनरेट हो रही होगी तो उससे क्या ये बंद नहीं होता होगा? इसके अंदर एक कूलिंग सिस्टम भी है। इसके अंदर जैसे आप सीपीयू में देखते हो कि कूलिंग सिस्टम लगा हुआ होता है, उससे अपना एक कूलिंग सिस्टम लगा हुआ होता है, प्लस एक्सटर्नल कूलिंग के लिए तो इसको हम लोग देते ही हैं, बट लेकिन उसके अंदर भी अपना एक सिस्टम लगा हुआ होता है और बाहर से पैक होता है ताकि उसके अंदर कोई ऐसा अनवांटेड कुछ ऐसा मॉइस्चर या घुस के उसको डैमेज नहीं कर सके। थोड़ा टेक्निकल जा रहा है बहुत, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स ए लर्निंग प्रोसेस, हमारे लिए तो बहुत ही नया है ये। एंड जो आप वो कंटिन्यू कर रहे थे कि फिर उसके बाद में एमिशन ऑफ गैसेस जो होती हैं जिसकी वजह से फायर डिस्टिंग्विशर होता है, राइट, उसमें पानी सोर्सेज नहीं है, वहाँ से फिर एक गैस रिलीज होती है और वो फायर को खत्म करती है। उससे डेटा भी प्रोटेक्टेड रहता होगा, जो आपके पास डेटा है, आर्काइव्स रहते हैं। अभी कैसा है कि गैस तो किसी चीज़ को उस तरह से डैमेज नहीं कर सकती है जिस तरह से पानी किसी चीज़ को डैमेज करेगा, फायर कर सकती है। फायर कर सकता है, तो गैस तो बस उसको बुझा देगी और वो नॉर्मल तरीके से वो शांत हो जाएगा। तो उसमें उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
ऑलराइट, अभी कुछ और भी इंटरेस्टिंग टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, एक एक करके वो भी देखते हैं। अभी हम कॉन्फ्रेंस में चलेंगे, सेंसर्स के बारे में बात करेंगे, सीसीटीवी के बारे में बात करेंगे, राइट? अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं इसमें बता देता हूँ, जो अगर हम लोग चाहें तो अपने रेसिडेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये 4 इंच ये प्लेटफॉर्म उठा हुआ है जी। ये उठे होने का क्या रीज़न है कि इसमें बहुत सारे वायर्स हैं जो इसके अंदर में गए हुए हैं, जिसके मेंटेनेंस के लिए इसको हमने उठा के रखा हुआ है। ठीक है। अब क्या है कि उन वायर के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी उसको किसी चूहे ने काट दिया या कभी किसी कीड़े ने उसमें ये कर दिया, तो उसके लिए वो असुविधा हो जाती है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा सोल्यूशन होता है कि एक रॉडेंट रिपेलेंट सिस्टम आता है। ओके। रॉडेंट रिपेलेंट सिस्टम क्या होता है, वो बेसिकली एक मशीन होती है जो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे साउंड एमिट करती है जो ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल नहीं होती जी। ठीक है। तो अब उसके साथ क्या होता है कि वो बेसिकली वो लोअर फ्रीक्वेंसी साउंड एमिट करती है, जो लोअर फ्रीक्वेंसी साउंड जो कीड़े मकोड़े हैं वो लोग सुन सकते हैं। ठीक है। और वो अच्छा, अब उसमें लेकिन एक प्रॉब्लम क्या होती है कि कीड़े मकोड़ों की जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत कम होती है। वो 24 घंटे में, या मे बी कि बहुत सारे कीड़े ऐसे 12 घंटे में ही रिप्रोडक्शन करके उनकी लाइफ साइकिल ही 1 दिन की होती है। करेक्ट। तो वो उसके साथ में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि वो जो डिवाइस होती है वो हर 8 घंटे में अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को चेंज करती है। ओके। तो उसके हिसाब से कैसा होगा कि कोई भी रॉडेंट उसके हिसाब से वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। तो उसमें चाहे छिपकली हो, चाहे चूहा हो, चाहे कॉकरोच हो, तो कोई भी जो रॉडेंट है वो उसके मतलब ये जो पूरा 4 इंच का उठा हुआ सिस्टम है उसके अंदर में कभी आ ही नहीं पाएगा। ओह ओके। तो अगर सेम सिस्टम अगर किसी को अपने घर में भी लगाना है, सपोज करिए कि किसी घर में होता है कि छिपकली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या चूहों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या बहुत टाइम गोडाउन में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आप क्योंकि आप चूहे मारने वाली भी दवा अगर डाल देते हो तो वो हेल्थ के हिसाब से तो सही नहीं होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो है तो पॉइजन ही। अभी वो चूहा वो जहर खा के किसी चावल की बोरी में के पास जाके मर गया है, तो वो तो ओवरऑल तो किसी के लिए एक हेल्थ हजार्ड है, हेल्थ थ्रेट। उसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं, मतलब आपके पास एंड नहीं होता। आपको एक तो वो डेथ होगा, स्मेल होगा, ये होगा, फिर आप उसको पकड़ नहीं पाओगे कि वो कहाँ जाके है, वो फिर डेथ आपको हो गया। ढूंढना पड़ता है वो। तो आप ये एक सिस्टम लगा लेंगे तो ये फिर इसका कवरेज एरिया होता है, नॉर्मली 100-150 स्क्वायर फुट कवर कर पाता है ये। तो आपको जितना एरिया में लगाना है उस हिसाब से आप वो सारा सिस्टम इंस्टॉल कर लीजिए। ये हमारा एक 12 सीटर कॉन्फ्रेंस हॉल है, जिसमें ये जो कॉन्फ्रेंस टेबल है ये तो हमने रेडीमेड लिया हुआ है, और ये जो चेयर्स हैं ये भी हमें रेडीमेड प्रोक्योर की हुई हैं। और भी बहुत सारी ऐसी इसमें टेक्निकल डिटेल्स हैं जो एक एक करके अभी हम लोग देखते हैं। जी। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे रजत जी इसमें कि अनलाइक अदर चेयर्स, हमने यहाँ पे वाइट कलर की अपॉल्स्ट्री ज़्यादा यूज़ की है इसमें, जबकि वाइट जो थोड़ा कमर्शियल स्पेस में लोग अवॉइड करते हैं। हाँ, इसमें अभी कैसा है कि यूजुअली कॉन्फ्रेंस में क्या है कि कोई भी बाहर से आने वाली पब्लिक ही हमारी कॉन्फ्रेंस में आ रही है जी। तो इसीलिए इसमें एक मोशन सेंसर लाइट लगी हुई है, जो आप देखेंगे कि ये ऊपर में एक मोशन सेंसर लगा हुआ है इसका, वाइट कलर का एग्जैक्टली। तो कभी भी कोई जैसे ही इसमें एंटर करता है वो उसके मोशन को डिटेक्ट करके इसकी जो लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन कर देते हैं। ये टेबल वाली सेंटर लाइट नहीं ऑन होती है, बाकी जो सीलिंग में लगी हुई लाइट्स हैं वो ऑन हो जाती है। एम्बियंस लाइट हमारी, एम्बियंस लाइट। इसकी जो वॉल्स हमने दी हुई हैं ये ऑल्दो बाकी वॉल्स के समान ही आपको दिखाई देंगी, लेकिन ये ड्राई वॉल पार्टीशन है, लेकिन इसके अंदर में एक रॉक वूल फिलिंग दी हुई है। अच्छा। तो रॉक वूल फिलिंग का क्या पर्पस होता है कि रॉक वूल फिलिंग एज अ साउंड इंसुलेटर एक्ट करती है। ओके। हाँ, ये जो हमारी 3 इंच की पार्टीशन है तो इसमें 12 mm की फ्रेमिंग की हुई है, और जिसके दोनों तरफ में 6 mm की प्लाईवुड है, और उसके बीच में रॉकवूल इंसुलेशन दिया हुआ है। ठीक है। जिसके कारण हमारा जो ये पूरा एरिया है ये पूरा एक साउंड प्रूफ एरिया की तरह काम करता है। ऑलराइट, साउंड ट्रांसफर नहीं होता। हाँ, दूसरा कैसा है कि जैसे इसकी अगर आप सीलिंग देखेंगे तो ऑल्दो उधर थोड़ा डार्क है तो शायद नहीं इतना दिखाई दे रहा होगा, लेकिन क्या है कि ऑल्दो इसकी जो सीलिंग की हाइट है वो यहाँ पे 9 फुट ही है, लेकिन उस जो और एक्चुअल सीलिंग की जो हाइट है वो अपनी 13-13.5 फुट है। ये वाली पार्टीशन अपनी पूरी ऊपर तक ली हुई है। अच्छा। जिसका भी पर्पस यही है कि अगर हमने सिर्फ यहाँ पे रॉकवूल इंसुलेशन प्रोवाइड कर देंगे तब भी तो साउंड हमारा पेनिट्रेट होने से नहीं रुकेगा, क्योंकि वो उधर चला जाएगा। बिल्कुल, तो साउंड ट्रैवल करता है ऊपर से। हाँ,
तो उसी हिसाब से हमने उस पार्टीशन को भी पूरा ऊपर तक लिया है ताकि वो भी एज अ साउंड बैरियर अपना एक्ट कर सके। उसके साथ ही आप देखेंगे कि इसकी वाली फ्लोरिंग भी जो है वो वुडन फ्लोरिंग ली हुई है, तो वो भी एक एकॉस्टिक की तरह एक्ट करती है जी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 12 लोगों की तो एक स्ट्रेट सिटिंग है जो इस टेबल पर है जी। उसके अलावा भी 5 लोगों के लिए उधर और 5 लोगों के लिए इधर बैठने की जगह है, एक्स्ट्रा सीटिंग दिया है। एक्स्ट्रा सीटिंग के हिसाब से। तो 12 और प्लस 10 तो 22 लोग जब एक साथ एक कमरे में बैठे हुए हैं और अगर किसी डिस्कशन पे 4, 5, 6 लोग भी एक साथ बोलना अगर चालू कर लिया लोगों ने, तो वो फिर ऐसा एक नॉइजी प्लेस, नॉइजी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट ना हो जाए, जिसके कारण ये पूरा एक अरेंजमेंट करके हमने रखा हुआ है। ठीक है। बाहर से अंदर आ रहा है या अंदर से बाहर जा रहा है तो लोगों को पता भी चले, ताकि ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो कि कोई बाहर से भी अंदर आ रहा है और अंदर से भी बाहर जा रहा है, तो वो कोलिजन की एक स्थिति ना पैदा हो उसके अंदर। ठीक बात है। तो अब कुछ और कॉन्फ्रेंस की रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे टेलीफोन लाइंस हैं, इंटरनेट सर्विसेज हैं, आपके पैनल्स हैं और आपका कनेक्टिविटी विद टेलीविजन है। कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए, पीपीटी के लिए, यू नीड टू हैव अ प्लेस, यू नीड टू हैव सिस्टम इन प्लेस। तो यहाँ पे हमने टच पैड के थ्रू ये सब दिए हुए हैं। हाँ, अभी इसमें कैसा है कि जैसे हमने शुरुआत में ही देखा था कि ये काफ़ी आईटी इनेबल्ड पूरा ऑफिस बनाया हुआ है, चूंकि ये कंपनी का जो बेसिक काम है वही उस पूरी चीज़ों से रिलेटेड है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो ये एक हमारा उस तरफ में एक हमारा पूरा प्रेजेंटेशन बोर्ड है, तो वो एज अ टेलीविजन भी एक्ट कर रहा है। उसके साथ में जो पेन है उस पर आप डायरेक्टली लिख भी सकते हैं। अच्छा, ये टच स्क्रीन है पूरा टेलीविजन, काइंड ऑफ ये स्मार्ट टीवी काइंड ऑफ अ थिंग है। तो इसमें आप लिख भी सकते हैं उसको, पूरे प्रेजेंटेशन को ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन पूरा सेव भी कर सकते हैं जो आपने लिखा है। ओके, ठीक है। और इसमें एक साउंड बार भी लगा हुआ है, और आप जो देखेंगे कि वहाँ कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरे में कैसा सिस्टम किस तरह से उसका इंटीग्रेशन है कि इन 12 लोगों में जो कोई भी बोल रहा है, अच्छा, उसकी तरफ ऑटोमेटिकली वो कैमरा पैन हो जाएगा। ओह वाओ। और जो बोलने वाला आदमी है उसका चेहरा है वो उस पूरे स्क्रीन पे हाईलाइट हो जाएंगे। ओह लवली। अच्छा, very advanced technology. Very advanced. I mean, this has got 360 degree या 180 degree का 180 movement है, 180 degree 180 degree movement। और साउंड भी वही कैप्चर करेगा उसका। साउंड का भी है जिस तरह से मोबाइल फोन्स में साउंड का कैसा है कि ये तो जो प्रेजेंटेशन की साउंड है या जो हम लोग उसमें कोई वीडियो देख रहे हैं उसकी वाली साउंड आएगी। जो यहाँ पे कोई बोल रहा है उसकी साउंड कैप्चर करने के लिए ये डिवाइस हमारी लगी हुई है। अच्छा, साउंड का इनपुट यहाँ से है। हाँ, साउंड का इनपुट यहाँ से है, और आप जैसा देख सकते हैं कि ये ऐसा तीनों साइड से ही किया हुआ है, और इसका एक बहुत बड़ा बेस है, ताकि कोई भी इस पूरे एरिया में जो बोल रहा है वो बहुत आराम से इस डिवाइस से सामान कैप्चर हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर किसी को ये म्यूट करना है तो भी वो यहाँ से म्यूट का जो बटन दिखाई दे रहा है यहाँ से म्यूट कर सकता है। बाकी जो सेटिंग वगैरह है वो भी यहाँ पे हमारी दिखाई देती है। अच्छा, इसमें बहुत सारी सेटिंग है जो हम लोग इसके साथ में देख सकते हैं। ठीक है। अगर किसी को ये मॉनिटर एज ए बोर्ड यूज करना है, अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना है, तो हमारे पास उसके लिए यहाँ पे हमने बहुत सारी कनेक्टिविटी दी। हाँ, ये सारा हमारे यहाँ पे पॉपअप बॉक्स है। तो पॉपअप बॉक्स के अंदर में हमारा डेटा का पॉइंट है, रैक का पॉइंट है, बाकी जो पावर पॉइंट है वो सारा कुछ भी इसके साथ में ही आया हुआ है। डन। कॉन्फ्रेंस स्पेसेस में एक चीज़ और है, अब हम थोड़ा एस्थेटिक्स की तरफ चले जाते हैं कि यहाँ पर अनलाइक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, ये कमर्शियल स्पेसेस हैं, रेस्टोरेंट की तरह होते हैं। यहाँ पे टी, कॉफ़ी, ये चीज़ों की सर्विंग ज़्यादा होती है, तो जिनके जो टेबल टॉप्स होते हैं उनके जो उनके मटेरियल हैं वो भी बाकी से थोड़े डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल, राइट ना। शायद यहाँ पे विनियर्स यूज़ किया हुआ है। हाँ, इसमें हमने इसके ऊपर में विनियर यूज़ किया है। तो ये विनियर में कैसा है कि जैसे इसमें हमने एक हाई ग्लॉस की इसकी कोटिंग दी हुई है। अच्छा। अदरवाइज बाकी इस पूरे जगह में जहाँ पे भी आप विनियर का यूज़ देखेंगे उसमें नॉर्मली मैट फिनिश दिया हुआ है। अच्छा, तो इसमें ग्लॉस देने का ये रीज़न था कि उस ग्लॉस पे अपना किसी भी चीज़ का दाग लगना या किसी भी चीज़ का स्क्रैच होना वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है। ओके, ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट है, जानबूझ के किया गया है। बिल्कुल। ये एक छोटा सा कैफेटेरिया बनाया हमने। हाँ, ये छोटा सा पेंट्री यूनिट है यहाँ पर। Okay. और इसके साथ ही एक छोटा सा ऐसा सिट आउट ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ आप कैफेटेरिया बोल लीजिए या ऐसा सिट आउट स्पेस बोल लीजिए उसके साथ। इंडस्ट्रियल फिनिश के लेग्स के साथ में टेबल टॉप है, बार स्टूल्स दिए हैं यहाँ पे आपने। हाँ, ठीक है, डन। 6 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट है। बिल्कुल। बात कर रहे थे हम लोग स्टोरेज को लेके, तो आई थिंक स्टोरेज काफ़ी सारा हमने दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ। अभी स्टोरेज में भी कैसा है कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो टेराकोटा वाली फिनिश जो आपको दिख रही है हाइलाइटर है, हाइलाइटर पे, जी। तो वो कैसा है कि वो सारे कॉलम्स हैं।
चूंकि ये कमर्शियल बिल्डिंग है तो कमर्शियल बिल्डिंग में कॉलम की स्पेसिंग ज़्यादा होती है, तो उसी हिसाब से कॉलम टू कॉलम का गैप ज़्यादा होता है, तो उसी हिसाब से कॉलम के साइजेस भी ज़्यादा होते हैं जी। तो आप यहाँ जो सारे कॉलम आए हुए हैं, बीच वाली जो स्पेस है वो बाहर की तरफ से कुछ उसका ग्लास का ट्रीटमेंट है या कुछ उस तरह का ट्रीटमेंट किया हुआ है, तो वो जो स्पेस निकला हुआ था उसको ही हमने पूरा एक स्टोरेज के हिसाब से भी यूज़ कर लिया है। ओके तो कॉलम का कुछ पार्ट और थोड़ा सा आपने प्रोट्रूजन देके थोड़ा आगे बढ़ा के उसको इस तरह से स्टोरेज ले लिया है ना। और जहाँ पे आप बता रहे थे कि ज़रूरत नहीं है आपको ग्लास की, आपने ये यूज़ किया है, मोस्टली लोग ग्लास भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। हाँ, ग्लास यूज़ हमने इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये एक मैनेजर का केबिन बना हुआ है, तो ये मैनेजर के केबिन में कैसा है कि बगल वाले जो मैनेजर हैं उनकी जो मीटिंग हो रही है उससे उनका कुछ ऐसा विजुअल डिस्टर्बेंस नहीं हो, बोल के हमने उसके साथ में उस तरह का पार्टीशन लिया है। और प्लस है कि इसमें जैसे कॉन्फ्रेंस में हमने देखा था कि ये सेम काइंड ऑफ पार्टीशन आपको विजुअली सेम ही आपको दिखेगा, यहाँ का पार्टीशन और कॉन्फ्रेंस का पार्टीशन। डिफरेंस यही है कि इसके अंदर में रॉक वूल हमने नहीं यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि ये चूंकि सामने से खुला हुआ है तो इसमें ऐसा किसी तरह के साउंड इंसुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को, क्योंकि अगर आप सेम पार्टीशन रॉक वूल के साथ में और रॉक वूल के बिना करते हैं तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स का डबल का फर्क हो जाता है। रॉक वूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, राइट। अगर आप इफ़ यू आर यूजिंग अ राइट काइंड ऑफ अ रॉक वूल विच विल एक्चुअली एक्ट एज अ साउंड बैरियर, ओके, तो वो काफ़ी तो वो इस चीज़ का खास ख्याल रखना होगा हमें कि मतलब जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे ही हम पैसा लगाएं, है ना। बिल्कुल ठीक बात है। There are few basic questions we would ask you, and how long did it take to complete this project? We took around, we committed for 4 months and we completed that on time. We took roughly 3 months, some days, and we completed the project. All right. Okay, Rajat ji, this question is for you. Generally, you work on design ideas. You have done multiple projects, residential and commercial as well. So, what is the procedure? How do people get in touch with you? मतलब जैसे आपसे approach करें तो what is that information you want people to come with? बेसिकली तो कैसा है कि जैसे हमारी जो कंपनी है उसमें आप जैसे हमें अप्रोच कर सकते हैं जी। और हम लोग हमेशा ही कहते हैं कि यूजुअली हमारे आप अगर देखेंगे कि अगर आप कभी आउटसाइड इंडिया कभी अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ की कंपनीज में और हमारी कंपनी में बेसिक फ़र्क कैसा होता है या वर्किंग स्टाइल में एक बेसिक फ़र्क कैसा होता है कि वहाँ हमारे यहाँ लोगों को बहुत जल्दी होती है कि कितना जल्दी काम शुरू कर सकते हैं। एज इफ़ आज मेरे पास कोई क्लाइंट आया एंड ही इज़ लाइक कि अभी 2 दिन के बाद अपने को काम शुरू करनी है, तो वी ऑलवेज से कि आप डिज़ाइन में, उसके प्लानिंग में, उसके सारे प्रोसेसेस को डिफ़ाइन करने में जितना ज़्यादा अच्छे से टाइम देंगे, आपके प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में उतने कम हर्डल्स आएंगे और वो उतना स्मूथली कंप्लीट हो पाएगा। ठीक बात है। तो हम लोग एक जनरल कोई भी जो कस्टमर है वो चाहे हमसे काम करवा रहा है, किसी से भी काम करवा रहा है, एक जनरल चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि तो आप अपनी रिक्वायरमेंट आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। आप चाहे एक घर बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, स्पेशली अगर आप इस तरह के एक ऑफिस में डील कर रहे हैं जिसमें इतनी सारी कॉम्प्लिकेसी है कि इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आपको एक साथ हैंडल करना है, इतनी सारी सर्विसेज हैं जिनको आपको एक साथ टैकल करना है, तो उसमें एक तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने रिक्वायरमेंट्स डे 1 में क्लियर होने चाहिए। दूसरा कैसा है कि आप काम शुरू करने से पहले क्लोज डिज़ाइन इन ऑल एस्पेक्ट्स कि हर एक दीवार पे क्या लगना है, उसकी कौन सी कलर फिनिश होनी है, किस कंपनी की उसका कलर फिनिश होनी है। अगर ये फ्लोरिंग अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि ये जो फ्लोरिंग लगी हुई है अपनी, ये कारपेट आपको लोकल कारपेट 70 रुपीज़ से लेके ब्रांडेड कारपेट 450 रुपीज़ तक भी मिलता है। बिल्कुल। तो 70 रुपीज़ और 450 रुपीज़ के जो बीच का गैप है वो बहुत ज़्यादा है। ओके। स्पेशली अगर आप इतने बड़े एरिया में कर रहे हो। सिमिलर बाकी चीज़ों में भी अप्लाई सिमिलर थिंग अप्लाइज टू ऑल द थिंग्स, राइट। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी सारी डिज़ाइन को पहले कंप्लीट कर लेना है, सारे एस्टिमेशन को पहले कंप्लीट कर लेना है, आपको अपना जो टाइम पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो पहले से डिफाइन कर लेना है। उसी हिसाब से आपको अपना मनी इनफ्लो, आपके जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन, वो सारी चीज़ों को भी पहले से डिफाइन कर लेना है। तो आपको अपने प्रोजेक्ट बहुत आपका स्मूथली कंप्लीट हो पाएगा। जो ऑन बजट है वो ऑन बजट हो पाएगा, ऑन टाइम है ऑन टाइम हो पाएगा। तो ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको कहा कि बाहर की कंट्री में हमारे में क्या डिफरेंस होता है कि वो लोग अगर 3 महीने प्लानिंग में लगाते हैं और 2 महीने एग्जीक्यूशन में लगाते हैं, हम लोग 1 महीने प्लानिंग में लगाते हैं और फिर 1 साल एग्जीक्यूशन में लगाते हैं।
तो Okay. अल्टीमेटली एट द Very एंड true, ऑफ very द true, डे very true. Very नुकसान हमारा ही है, बिल्कुल। लेकिन वो लोग थोड़ा सा शुरू में पेशेंस नहीं रख पाते थोड़ा हैं, ऑर्गेनाइज होके रहेंगे तो हाँ, मतलब आपको process ऑर्गेनाइज होने का define टाइम नहीं मिल जाता है। बिल्कुल। जैसे मैं हमने बताया था कि हमारा जो अभी मेन हेड ऑफिस है वो भुवनेश्वर है, और ब्रांच ऑफिस हमारा बिहार में है और एक झारखंड में है। और तो इन अभी बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इन 3 जगहों पे तो हम लोग डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन सारी चीज़ें कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली अभी जैसे हमने हैदराबाद में भी अपना एक्सटेंशन लिया है। और अदरवाइज़ तो अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो हम लोग पैन इंडिया के लिए भी अवेलेबल है। मे बी इन 4 स्टेट्स के लिए सर कौन सा क्या बजट है, मतलब मिनिमम वैल्यूएशन के हिसाब से इन 4 स्टेट्स में? जैसे अगर इंटीरियर का एग्जीक्यूशन वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे 25 लाख रुपीस का हमारा मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम एग्जीक्यूशन होना चाहिए। Okay. और आउटसाइड के लिए वो जैसे 50 लाख का एक है कि वहाँ तक का होने से मतलब वो फिर रिसोर्स मोबिलाइजेशन और वो हमारे लिए थोड़ा फिजिबल हो पाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इनफैक्ट वी हैव बीन इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स एंड दे सेड द सेम थिंग, इट इज नॉट वायबल टू एग्जीक्यूट अ स्मॉल प्रोजेक्ट इन अ डिस्टेंट लोकेशन बिकॉज too much of back and forth and you'll end up spending a lot of money on transportation, lighting, and thanks a lot for meeting and sharing such wonderful information. Aesthetics तो commercial के सीख है, technically it was a complete roller coaster ride. थैंक यू, हमारे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। Pleasure meeting you both of you. Thank you very much. Thank you. थैंक यू।